السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز 9 میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان اور اس وقت میں موجود ہوں لاہور میں مال روڈ کے ساتھ ہال روڈ پر۔ آج مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ہمارے جو فلسطین کے مظلوم بھائی ہیں ان سے اظہار یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے، اور میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر لاہوری موجود ہیں، پاکستانی موجود ہیں۔ یہاں پر ان کی قیادت بابر محمود صاحب کر رہے ہیں، اس کے ساتھ مظہر صاحب موجود ہے، باقی قائدین یہاں پر موجود ہیں۔ اگر ہم بات کریں بابر صاحب، یہاں پر اس وقت جو لوگوں کے جذبات ہیں، جو لوگوں کو جو ایک اظہار یکجہتی ہے وہ عروج پر نظر آ رہا ہے، آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ مسئلہ فلسطین جو ہے اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ میں ایک بات پیغام دینا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ ترکی کا ارطغرل ڈرامہ دیکھیں۔ صحیح، ارطغرل ڈرامہ وہ ہے جن کی جرأت سے سلطنت عثمانیہ کا وجود ہوا۔ اس کے بعد اس مٹی میں اتنی غیرت ہے کہ آج بھی اگر کوئی حکمران بولتا ہے تو وہ بھی ترکی سے بولتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو ترکی کا ڈرامہ ہے، ارطغرل سلجوکیوں کے ڈرامے جو دیکھے ہیں، جو ہم نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ڈرامے دیکھے ہیں، وہ دیکھ کے اس قوم پہ تو اثر ہو گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے دنیا بھر کے جو مسلمان ممالک ہیں انہوں نے شاید یہ یہودیوں کے ڈرامے دیکھ لیے ہیں، دوسری قوموں کے ڈرامے دیکھ لیے، کفار کے ڈرامے دیکھ لیے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ تاجر نہیں ہے، صحیح، یہ تاجر نہیں ہے، یہ جہادی ہیں اور اپنا آپ قربان کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں، اللہ کو حاضر ناظر جا کے بتائیں کہ بیت المقدس کے لیے ہم اپنی اولادیں، اپنا کاروبار، اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں؟ شہادت لینا چاہتے ہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں حکومتوں سے کہ آپ حکمرانیاں سنبھالیں اور ہمیں جہاد پہ جانے کی اجازت دیں۔ یہ میرا بیٹا ہے محمد صدیق، یہ میرا بیٹا ہے، تو میں اللہ کے حکم سے جب بھی کبھی ایسا وقت آیا میں اپنے بیٹے کو سب سے پہلے آ کے بیٹھوں گا۔ صحیح، اچھا یہاں پر جی ہماری بزدلیوں کی وجہ سے برما کے مسلمانوں پہ ظلم ہوا، ہماری بزدلیوں کی وجہ سے کشمیر ہم سے چھن گیا، ہماری بزدلیوں کی وجہ سے فلسطین پہ اس طرح کی بمباری ہوتی ہے۔ نہیں تو یہودیوں کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دشمن کی خواہش ہے کہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہودی طاقتور ہے، کفار طاقتور ہے۔ خدا کی قسم ذہن میں رکھیں، جس دن مسلمان کی غیرت جاگے گی ان کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میری آپ سے پھر یہی درخواست ہے، اپنے آپ کو کبھی کمزور نہیں سمجھتا، یہ وقتی مشکلاتیں ہیں، ہمیشہ مسلمان ہی حکمرانی کرتا ہے اور قیامت تک، کیونکہ یہ سچا مذہب ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے سچا مذہب اینڈ تک جائے گا، قیامت تک جائے گا؟ اچھا بابر صاحب یہاں پر بڑی تعداد میں لاہوریے موجود ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ جانے کے لیے تیار ہیں؟ ان کے ساتھ بالکل پوچھیں۔ آپ اللہ کو بھی ان کو یقین آ جائے اپنی قوم کا، آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولیں فلسطین کے لیے اسرائیل کے خلاف جہاد کرنے کا موقع ملے تو آپ تیار ہیں؟ پکی بات ہے۔ سب سے آسان راستہ، سب سے آسان راستہ، یقین کریں سب سے زیادہ پرافٹ والا کام، سب سے زیادہ بینیفٹ جس کام میں ہے وہ کون سا ہے؟ شہادت لے لو، جنت بھی لے لو۔ مرنا تو ویسے بھی ہے، کوئی کرونا سے مر رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر رہا ہے، کوئی قتل وغیرہ سے مر رہا ہے۔ شہادت کی موت آپ کو پتہ ہے کس نے خواہش نہیں کی۔ اگر ہمیں شہادت مل جائے تو بھائی ٹکٹ کٹ گیا جنت کا انشاءاللہ۔ اور جب جنت میں جتنے
ज्यादा तकलीफ उठाई होगी शहीद होने वाले ने, उतनी ही ज्यादा जन्नत में जगह मिलेगी, अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पर बाबर साहब के साथ साथ मदर साहब भी मौजूद है, यहाँ पर बाकी रहनुमा भी मौजूद है। बाबर साहब थोड़ा सा जरा जगह दीजिएगा जी, क्या क्या पैगाम देंगे यहाँ पर आप हुक्मरानों को? आज का पैगाम ये है, बाबर साहब ने जो एहतजाज किया है ये हमारा पूरे पाकिस्तान में रिकॉर्ड किया जाए। पूरे मीडिया का हम शुक्रिया अदा करते हैं। मीडिया ने जो किरदार अदा किया है जिस एहतजाज में, जो आपने हमारा यहाँ पे आकर दिल की हौसला बढ़ाया है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और इस एहतजाज को पूरे पाकिस्तान में दिखाया जाए और हुक्म। बिल्कुल जी, यहाँ पर बताया जा रहा है। मदर साहब क्या कहते हैं जी, आप क्या हल क्या है मसला फ़लस्तीन का? नजम अली साहब, मैं आपके चैनल के काउंसिल से OIC को ये कहना चाहता हूँ कि वो फौरी तौर पे उन मुसलमान मुल्कों को नोटिस दे जिनके सफारती तल्लुकात इसराइल से हैं, वो अपने सफीर को वापस बुलाएं और उस वक्त तक ना भेजें जब तक वो फ़लस्तीन में और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की यकीनदारी न कराएं। और दूसरा, मस्जिद अक़सा को मुसलमानों के कंट्रोल में दिया जाए, वहाँ यहूदियों का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, फिर जाके ये कोई मसला हल हो सकता है। अदरवाइज आपने देखा है मुसलमान हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बिल्कुल नजम अली साहब, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। क्या पैगाम देंगे जी आप यहाँ पर? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि काफिर समझते हैं कि इस्लाम तलवार से पहला, जबकि मुसलमान ये कहता है, उसकी तारीख कहती है कि इस्लाम जब भी जुल्म हुआ उसके खिलाफ खड़ा होने से पहला, जहाँ जहाँ पे जुल्म हुआ वहाँ पे सलाउद्दीन अय्यूबी, मोहम्मद बिन कासिम, हजरत उमर फारूक की बड़ी और जो हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत की फौज पहुंची। ये बैतुल मुक़द्दस हमेशा से मुसलमानों का था, रहेगा, क़यामत रहेगा। यहूदियों सुनो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मुसलमान और हमारे खास तौर पे फ़लस्तीनी भाई, वो आज जुल्म का शिकार है। आज मुसलमान सोया हुआ है, मगर यहूदियों याद रखना कि ये गैरत अमानी जब भी जागी तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि इस पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम होगा। हमारी तारीख गवाह है कि हम हमेशा इस पूरे खित्ते पर हुकूमत की है, इस्लाम का परचम फैलाया है और इंशाअल्लाह हम ये परचम को फिर से फैलाएंगे। हम सब फ़लस्तीन है, पाकिस्तान का हर एक मुसलमान भाई फ़लस्तीन है। बिल्कुल सही नाज़रीन, यहाँ पर जो बड़ी बिल्कुल जी दिखाइएगा। एक मिनट नाज़रीन, यहाँ पर जो लोगों के जज्बात हैं वो आपके सामने है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लाहौरी मौजूद हैं। हम लाहौर के जज्बात जो है दिखाना चाह रहे हैं, वो ये है। यहाँ पर बिल्कुल दिखाइएगा जी, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। और इसके साथ साथ फ़लस्तीन से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। फ़लस्तीन से रिश्ता क्या? फ़लस्तीन से रिश्ता क्या? फ़लस्तीन से रिश्ता क्या? जी नाज़रीन, मोहम्मद शहजाद साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज देंगे कि हमने अफगानिस्तान में सुपर ताकतों को शिकस्त दी है सिर्फ जिहाद के चक्कर में। जिहाद जाकर कर दे मुसलमान काफिरों को, काफिर हमारे में कभी भी गलबा नहीं कर। जिहाद के ऊपर ही हमने अफगानिस्तान में सुपर ताकतों को मार दिया ना। सही, अमेरिका को भी दिया, अमेरिका भी अब तुम तो आगे भाग रहे हो वहाँ पे। फ़लस्तीनी जिहाद कर रहे हैं ना, जिहाद कर रहे हैं, जिहाद मुसलमानों को जिसको कायम करना चाहिए। बिल्कुल सही, यहाँ पर जिहाद करना चाहिए। क्या पैगाम देते हैं जी आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये पैगाम है कि बैतुल मुक़द्दस जो है वो इंशाअल्लाह मुसलमान को जो क़िबला रहा है, और ये जो जहाद है ये इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से शुरू होगा और ये बैतुल मुक़द्दस को हम लोग फतह करेंगे और इंशाअल्लाह उधर इस्लाम का झंडा लहराएंगे इंशाअल्लाह। सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो लाहौरी मौजूद हैं और अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। और आपको लेकर चलते हैं यहाँ से इलामा इब्तिसाम अलाई ज़हीर, जो कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उनकी तरफ, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, पूरा लाहौर सरापा एहतजाज है और लाहौर ही नहीं बल्कि मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूंगा। पाकिस्तान से आज सदाए एहतजाज बुलंद की जा रही है। अगरचे इसराइल जो है जंग बंदी कर चुका हमास के साथ, लेकिन इसके बावजूद जो वहाँ पर जुल्म किया जा रहा है और जो जुल्म का एक सिलसिला जारी है, उस पर पूरी कौम जो है चाहती है कि एक ऐसा लाहेअमल इख्तियार किया जाए जिसके नतीजे में क़िबला अव्वल की आज़ादी को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन जब हम इसकी अमली बात करते हैं तो इलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर जो कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इलामा साहब, ये बताइएगा प्रैक्टिकली जब हम मौजूदा रियासती निज़ाम की बात करते हैं, जब हम मौजूदा ढांचे की बात, आलमी सतह पर जो एक सूरत हाल बनी हुई है उसकी बात करते हैं, उसमें इसराइल से फ़लस्तीनियों के हकूक़ दिलवाना किस तरह मुमकिन है? देखिए जी, बुनियादी तौर पर बात यह कि ये दौर जो है इसके अंदर जो है ना कम्युनिकेशन की भी अहमियत है, सफारतकारी की भी अहमियत है, खारजा पॉलिसी के अंदर आपकी प्रायोरिटीज है उनकी भी अहमियत है और इंटरनेशनल फोरम्स की भी अहमियत है। मैं ये बात समझता हूँ हमारे पास बहुत से वेन्यूज मौजूद हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम मौजूद, अगर वो हरकत नहीं आता OIC का प्लेटफॉर्म मौजूद है, अगर वो भी हरकत में नहीं आता तो हम ये बात समझते हैं प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करने का ऑप्शन मौजूद है और ये बात का ऑप्शन देने का जो है, इस बात का पैगाम देने का ऑप्शन मौजूद है कि अगर यहूद बाद ना आए तो हम रास्त इक़दाम जो है ना उनके खिलाफ करने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये बात समझता हूँ, अगर हम ये बात कहें कि हम वहाँ पर आज़ादी की जंग लड़ने वालों को, फ्रीडम फाइटर्स को या मुजाहिदीन को इंशाल्लाह अहलाकी तौर पर सपोर्ट भी करेंगे, अकेली अहलाकी बात भी मैं समझता हूँ यहूद की कमर को तोड़ने के लिए काफ़ी है। यानी कि एक जो पुरानी बात की जाती है जिहाद की बात, जिहाद प्रैक्टिकल नहीं रहा। क्यों नहीं प्रैक्टिकल रहा? मैंने तो पहले कहा जंग आज़ादी कहें, आप उसको जिहाद कहें, फ्रीडम फाइट कहें, जो भी इसको कहें, हमें उसकी मुकम्मल तौर पर तायीद करनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकली हिस्सा लेने से कासिर हैं तो अहलाकी मदद का ऐलान करना चाहिए कि हम उनको इंडोर्स करते हैं वहाँ पर जो कार्रवाइयाँ करने वाले मुजाहिदीन हैं, इसलिए कि उनका राइट बनता है। जब उनके लिए पॉलिटिकल सोल्यूशन के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, जब उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जदोजहद के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, तो तलवार उठाना, उसके अंदर जो अपनी गन उठाना, ये उनका मुकम्मल तौर पर राइट है। अगर हम कश्मीर के अंदर होने वाली जंग आज़ादी या जिहाद को एंडोर्स करते हैं तो फ़लस्तीन के अंदर होने वाली जंग आज़ादी, आम आदमी इब्तिसाम साहब ये समझते हैं कि हम सिर्फ गुफ्तगू करते हैं, हम बातें करते हैं। 1948 से लेकर अब तक हम एक ही काम करते चले आ रहे हैं, हम मजम्मत कर रहे हैं, हम मुजाहरे कर रहे हैं, हम हर जुम्मतुल विदा को, हर रमज़ान के आखिरी जुम्मा को यौमुल कुद्स मनाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कश्मीर के लिए खड़े हो जाते हैं आधे आधे घंटे के लिए बाहर निकलकर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस गोंगलों से मिट्टी है, झाड़ी जा रहे हैं। अब आपको ये बताता हूँ बात, ये असल में बात ये जिहाद का अल्टीमेटम देना, ये असल में रियासत का मैनिडेट है। अगर हमारा मैनिडेट हो तो हम इस वक्त ऐलान जिहाद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इस आपके थ्रू ये पैगाम जो है ना हुकाम बाला को भी और अवाम को देना चाहते हैं, अगर हुकूमत रास इक़दाम का जिहाद का ऐलान करती है तो इंशाअल्लाह मरकज़ी जमीयत अहले हदीस और कुरान और सुन्नत मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से हम 10,000 से ज़्यादा मुजाहिदीन भेजने के लिए तैयार हैं। वो आप ज़रूर जिहाद का ऐलान कीजिए, लेकिन जब मैं ज़ाती तौर पे जब पाकिस्तान की रियासत को देखता हूँ, आप तनकीद करते हैं, आप कहते हैं शायद हुकूमत उस तरह रिएक्ट नहीं कर रही जिस तरह करना चाहिए, लेकिन मैं जब समझता हूँ कि जो उनके हमसाये हैं, जो अरब हैं, उनके मुकाबले में रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ ज़्यादा बेहतर है। हमने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, वो तो तस्लीम करके बैठे हुए। मैं ये बात समझता हूँ सऊदी अरब ने तस्लीम नहीं किया, बहुत सी अरब रियासतों ने तस्लीम नहीं किया। अगर किसी एक आदमी ने तस्लीम कर लिया तो उससे मजमूई तौर पर अरबों के किरदार की तनकीस नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो काम वो कर रहे हैं वो भी ज़ुबानी कलामी है, जो काम हम कर रहे हैं वो भी ज़ुबानी कलामी है। रास इक़दाम का इक़दाम तो ना वो कर रहे हैं ना हम कर रहे हैं। तो मैंने तो ये बात की है कि प्रैक्टिकली फिर हमारा काम तो मुतालबा करना रहता है, लेकिन जो मैनिडेट अगर हमें मिल जाए इस बात का कि हम रियासत के कानून की वायलेशन करने वाले लोगों में शामिल ना हो और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क का जो है ना अदम एहतराम करने वाले लोगों में शामिल ना हो, तो मैं ये बात समझता हूँ कि हम जिहाद की भी शायद कॉल देने में मादा तैयार हो जाएं, लेकिन हम मुल्क में अफरा तफरी नहीं जाते। हम मुल्क के अंदर कोई ऐसा जो है ना, मुल्क में ऐसा कोई बाजार गर्म नहीं करना चाहते इंतशार का, जिसके नतीजे में लोग ये बात कहें कि मजहबी लोग जो आज कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क को बाईपास कर रहे हैं। चुनाचे हम बसात एहतराम अपने अस्करी इदारों से हुकाम वक़्त से इस बात का मुतालबा करते हैं कि आप जो है ना इसराइल के मसले को सीरियस लें और इस मसले में अगर कोई रास इक़दाम के दौरान आपको अवामी ताउन की ज़रूरत है तो इंशाअल्लाह अपनी जानें, अपने अमवाल, अपनी औलादें और अपने घर बार के साथ जो है क़िबला अव्वल के जो है हिफाज़त के लिए मानने के लिए तैयार। हुकूमत जो है सिफारती इक़दामात, मैं आपकी जो बात समझ रहा हूँ, आप सिफारती इक़दामात को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त प्रैक्टिकली जो है जिहाद जो है उस तरह एक जंग जो है प्रैक्टिकल नज़र नहीं आ रही, तो आप सिफारती इक़दामात को बहुत ज़्यादा। अब देखें तो जो हमारे आलमी इदारे हैं, OIC जो है करारदाद मंजूर की और उसके बाद वो खामोशी है, कोई पता नहीं क्या करना है। जब हम अक़वाम मुत्तहिदा को देखते हैं, वहाँ पर अमेरिका वीटो कर देता है जब भी कोई करारदाद आती है, कुछ भी आता है, तो ऐसी सूरत हाल में हम कैसे कामयाब हो सकते हैं? मैंने पहले आपको ये बात कही है कि असल मसला ये है कि हमें उस सोल्यूशन में जाना चाहिए जो बुनियादी सोल्यूशन बनता है।
آپ مجھے یہ بات بتائیں جس وقت کشمیر میں جنگ آزادی لڑنے والے لوگوں کو ہم کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں, تو الٹیمیٹلی کیا یہ بات انڈیا یا دیگر اس کے ہم نوا جو ان کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے کہ نہیں؟ کیا ہم نے ایک مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ فلسطین کے اندر جو عسکریت یا فلسطین کے اندر جدوجہد آزادی کرنے والے لوگ یا فلسطین کے اندر آزادی کی جنگ لڑنے والے لوگ یا اپنا سلوگن کرنے والے لوگ, ہم ان کے ہر طرح سے ساتھ ہیں. اگر ہم یہ بات بالکل واشگاف الفاظ میں کہیں تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی کمر جو اس میں ہم آ سکتا ہے, اس کی گردن جھک سکتی ہے اور اس کی اکڑ دھوڑ ہو سکتی ہے. آپ کو حل اس وقت جو ہے کوئی نظر آ رہا ہے کہ حل ہو جائے گا؟ ایک جنگ بندی ہوگی, یہ ایک کامیابی ہے, ایک معاہدہ ہو گیا حماس کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان, یہ ایک کامیابی ہے. اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین حل ہو, اس کے لیے کوئی ایسا حل بن جائے جس کے ذریعے چاہے وہ ایک ماضی کا وہ حل نکال لیا جائے جس میں بیت المقدس کو ویٹیکن سٹی کی طرح ایک خود مختار علاقہ بنا دیا جائے, یا کوئی بھی پریکٹیکل حل کیا نظر آتا ہے؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی بھی حل جو ہے نا جب اسے آپ نے تلاش کرنا ہوتا ہے تو جو کنفلکٹ ہوتا ہے اس کی احساس دے جانا چاہیے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں یہود نے جو یہاں پہ اکثریت حاصل کی ہے یہ مصنوعی اکثریت ہے, یہ مائیگریشن کے ذریعے حاصل کی گئی ہے, اور اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ ایک منظم آبادیاتی جو ہے نا ایک پلاننگ کر کے پوری دنیا سے اپنی ہم مذہب لوگوں کو مائیگریٹ کرنے میں مادہ تیار کیا گیا ہے. تو ایسی جو مائیگریشن جس کے نتیجے کے اندر حقیقی اکثریت کو کلیت میں تبدیل کیا جائے اسے کبھی بھی قبول نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم اسے انڈورس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ہم کشمیر کے مقدمے سے بھی دستبردار ہو رہے ہیں, ہم برما کے مظلوموں کی حمایت سے بھی دستبردار ہو رہے ہیں, ہم بنگال کے اندر ہونے والے ظلم کی بھی حمایت کر رہے ہیں. چنانچہ ہم ہمیشہ یہ بات کہیں گے کہ اسرائیل کا قبضہ فلسطینیوں میں ناجائز ہے, اور اس ناجائز قبضے سے ان کی جان چھڑوانے کے لیے اور القدس کو آزاد کروانے کے لیے اس رویے کو اختیار کرنا پڑے گا. حضرت صلاح الدین نے کیا تھا, حضرت فاروق اعظم نے کیا تھا, اور حیبر کے مقام پہ سیدنا علی المرتضیٰ نے کیا. ایک حل یہ بھی بیان کیا جاتا ہے ابتسام صاحب کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے, مذاکرات کیے جائیں, سفارتی سطح پہ کوششیں کی جائیں اور اس کے ذریعے حل نکالا جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی رستہ؟ ایون قومی اسمبلی میں یہ بات ہوئی. میں یہ بات سمجھتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کے ناجائز قبضے کو انڈورس کر دیا اگر آپ نے یہ کام کیا. جس طرح آپ یہ دیکھیں ہمارے کشمیریوں کی اکثریت کو جو ہے ایک پلاننگ کے تحت, کانسٹیٹیوشنل پلاننگ کے تحت جو ہے نا ایک مکاری کے تحت انڈیا جو اس کو بدل رہا ہے. اگر آج ہم اس چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہم کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو آگے بڑھانے کے بجائے ان کو پیچھے لا رہے ہیں. تو ہمیں سرے سے اس بات کو قبول نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہود کی جو اپنی کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے, یہود کی جو اکنامک اسٹریٹجی ہے, یہود کا جو پروپیگنڈا ہے, اگر ہم ان سے بہت قریب کلوز انٹریکشن کریں گے تو ہمارے ملکوں کے اندر سازش کے تانے بانے مزید بچھائے جائیں گے اور ہمارا ملک بھی یہودی سازش کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. بالکل جی, یہاں پر بالکل پریکٹیکل بات کر رہے ہیں علامہ ابتسام الہی ظہیر یہاں پر موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت جہاد کا اعلان کرتی ہے تو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان 10,000 کارکن جو ہیں وہ بالکل دے گی, جہاد کے لیے دے گی, لیکن بنیادی طریقہ کار کیا ہے اس وقت؟ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سفارتی سطح پر کوششیں کریں, آپ آواز بلند کریں. آپ کا آواز بلند کرنا بھی اہم ہے, آپ کا اخلاقی حمایت آپ کی کرنا بھی اہم ہے, آپ کا سفارتی سطح پر کوششیں کرنا بھی اہم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. مزید آپ کو دکھائیں گے, بتائیں گے, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, لاہور کے جذبات ہیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے علامہ ابتسام الہی ظہیر کی گفتگو بھی سنی. یہاں پر بڑی تعداد میں لاہوری ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا حل ہے جی مسئلہ فلسطین کا؟ مسئلہ فلسطین کا حل یہ ہے کہ یہودی کا پوری طرح بائیکاٹ کیا جائے. صحیح. ہم اپنے ملک کے اندر یہودی اشیاء کو استعمال کرتے ہیں, جتنی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے. صحیح. فلسطین کو ان سے آزاد کروایا جائے. فلسطین کو ان سے آزاد کروایا جائے, بائیکاٹ کیا جائے جو یہودیوں کی پروڈکٹس ہیں ان کو. کیا کہتے ہیں جی, کیا حل کیا ہے جی یہاں پر؟ بالکل یہ نہیں حل ہے, ان کے ساتھ ہر بائیکاٹ کیا جائے, نقصان پہنچایا جائے. اور سب سے پکا حل ہے وہ یہ ہے کہ جو سارے دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے سارے جو ملک سے 20,000 ممالک اکٹھے کر کے ان کے ساتھ جہاد کا اعلان کیا جائے. انشاءاللہ بڑا ہی کوئی مشکل نہیں ہوگی ان کو بچھاڑ دیں. کوئی مشکل نہیں ان کو بچار. کیا حال کیا جی یہاں پر؟ سمجھتا ہوں جی کہ جب پرانی دفعہ بیت المقدس فتح ہوا تھا اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس ٹائم ایک معاہدہ ہوا تھا کہ یہودی یہاں پہ رہ نہیں سکتے, عیسائی نہیں رہ سکتے. اگر اسی معاہدے کو اٹھایا جائے فتح کرانے کے لیے مشکل نہیں ہے. نہیں, بالکل وہاں پہ یہودی نہیں رہ سکتے. کیا حل کیا ہے جی مسئلہ فلسطین کا حل کیا ہے؟ فلسطین کا حل جو ہے نا وہ مسلمان جب تک ایک نہیں ہوں گے نا فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا تبھی فلسطین کا حل ہے. ادروائز وہ ہم پہ وار کرتے رہیں گے, ہمیں ٹیسٹ کرتے رہیں گے. ہمیں مسلمانوں کو ایک ہونا ہے, ایک جب تک نہیں ہوں گے یہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, اور بھی مسلمان ملکوں پہ حملے ہوتے رہیں گے.
और भी मुसलमान मुल्कों में हमले होते रहेंगे। क्या हल क्या है जी मसला है फ़लस्तीन का? फलस्तीन हमारे जानों को भी कुर्बान, हमारे बच्चे औलाद को भी कुर्बान। जब हम हमारी अरमान है कि हम सब मुसलमान इकट्ठा हो जाए और ये यहूदियों को ख़त्म करे। मुसलमानों की ये जिक्ति चाहिए हमारे पर। हमने खपन बांध कर हमें बच्चे सब ताला करे और फलस्तीन को आबाद करे और ये क्या हाल है जी यहाँ जी? आपके सामने जी पूरा पाकिस्तान आज फलस्तीन के साथ खड़ा है, जाना बेचाना। मुसलमान सारे आज यकजहती में का इजहार कर रहे हैं और हम फलस्तीन के साथ हैं। इसराइल की पूरी मजम्मत करते हैं जो उन्होंने निहत्ते मुसलमानों पे, निहत्ते फलस्तीन पे मस्जिद अक्सा के अंदर जाकर जुल्म किया और उनको बेगुनाह शहीद किया। हम तमाम शहीदों के साथ हैं और इंशाल्लाह हम भी शहादत के लिए तैयार हैं। पूरा हाल और पूरा लाहौर, पूरा पाकिस्तान जज्बे शहादत, जज्बे जहाद से सरशार है। इंशाल्लाह हम फलस्तीन पर ये जो जुल्म सितम है और जो यहूदियों की, इसराइल की जो ये मजम्मत है वो ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। मैं आपके तवज्जुह से हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ कि यहूदियों की जितनी प्रोडक्ट पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है उस पर पाबंदी लगाई जाए इंशाल्लाह। और ये पूरी इस्लामी दुनिया में यहूदियों की जो है यहाँ पर बाइकआउट किया जाए। क्या हल क्या नजर आता है जी आपको इस मसले फ़लस्तीन का? जहाद की जरूरत है बहुत अशद। बातों से और वज़मती करारदादों से कुछ भी नहीं होगा। कल नेशनल यूएन असेंबली में इसराइली एम्बेसडर ने जो लॉलीपॉप दिया है वहाँ पे उसकी मजम्मत करते हैं। वो सिर्फ लॉलीपॉप और कुछ भी नहीं, इसका कोई हल नहीं है। उसने कहा कि जी ये इसराइल हमारी जो जंग है वो फ़लस्तीन के साथ नहीं है, गजा के साथ है। ये मुस्लिम दुनिया को लॉलीपॉप दिया उसने, पूरी दुनिया को बकवास की है उसने। मुस्लिम दुनिया को यहाँ पर लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं यहाँ पर, और बिल्कुल यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो बात करना चाह रहे हैं जी। क्या हल क्या है? हमारे हुक्मरान हमें इजाजत दें, बॉर्डर खोल दें, हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। हम यहूदियों को खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह। इन कुत्तों को सबक सिखा देंगे। आप जाने के लिए जहाज के लिए तैयार हैं? क्या हल क्या? लाख बन जाएंगे। हमारी हुकूमत से अपील है कि ये बॉर्डर खोल दे। इंशाल्लाह जितने सारे मुसलमान भाई हैं एक होके हम खुद मुकाबला करेंगे। सिर्फ हुक्मरानों का ये काम है हमें इजाजत दे दें कि जाएं और जहाद करें। इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, मरेंगे, जो भाइयों से जुल्म हो रहा है उनकी मदद भी करेंगे इंशाल्लाह। हुक्मरान हमारा साथ नहीं देते इस मामले पर, हम खुद तैयार हैं। हमारी औलाद, हमारे बच्चे, हमारे सब तैयार हैं। ये जो बच्चों की तस्वीरें लगी हुई है और जो हाल है ये अपने बच्चे समझो, फिर जाके इनको पता लगेगा कि दर्द क्या होता है। देख लो मुसलमान जाग उठे, हम सबको मारेंगे, हम एक एक को घर से निकाल के मारेंगे। हम मुसलमान हैं, आपका दीन लेके आएंगे, तुम्हें बताएंगे हम कितने सच्चे मुसलमान हैं। कुत्तों भाग लो जितना भागने, हम जरूर तुझे घर से निकाल के मारेंगे। यहाँ पर आप आगे आइएगा, जरा आप आगे आइएगा जी। उम्मत मुसलमान का सिर्फ एक ही नारा होना चाहिए, अल जहाद अल जहाद। इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई हल नहीं। अगर मुसलमान उम्मत मुसलमान ये नारा लगाएगी तो इंशाअल्लाह ताला हर तरफ इज्जत ही पाएगी। एक ही नारा होना चाहिए कि अल जहाद अल जहाद। अगर जहाद का ऐलान होता है तो आप लोग जाने के लिए तैयार हैं? हम डरने वाले भी नहीं, झुकने वाले भी नहीं है। इंशाल्लाह लड़ने वाले और जीत के मैदान आएंगे। इंशाल्लाह जान पे जान देने के लिए तैयार। हमारे बच्चे कुर्बान, हम सब कुर्बान इस्लाम में। इस्लाम पे आज हल क्या है? मसला फ़लस्तीन का हल क्या है? हल जहाद है, जहाद है। इनको और कुछ इनके साथ और कुछ नहीं करना, बस जहाद करना है। तो हमें सारी परेशानियां दूर, हम जहाद से दूर हो चुके हैं जिस वजह से हमें सारी परेशानियां इस टाइम जो हालात है इस जहाद ना करने की वजह से हम बुज़दिल हो चुके हुए हैं। अगर जहाद हम करेंगे तो इंशाल्लाह सारे मसले दूर हो जाएंगे। अल जहाद अल जहाद, लब्बैक लब्बैक, अल जहाद अल जहाद, अल जहाद अल जहाद जी। के साथ भी खड़े हैं, इमरान खान के साथ भी खड़े हैं। हमें इजाजत दे, इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान जहाद के लिए तैयार है। बॉर्डर खोल दे, हम किसी चीज से डरने वाले नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। नारे तकबीर।
बॉर्डर खोल दिया तो आप तो किधर चले जाएंगे? चीन चले जाएंगे, अफगानिस्तान चले जाएंगे, इंडिया चले जाएंगे, फलस्तीन तो नहीं चले जाएंगे ना यहाँ से। इंशाल्लाह जहाँ पर हमारे फलस्तीनों पे जुल्म हो रहा है, इंशाल्लाह उसके साथ हम खड़े हैं। बॉर्डर खोल दे, हम जाने के लिए तैयार है। चलो पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह जाने के लिए तैयार है, इंशाल्लाह जहाँ हमारे जाने के लिए, क्या जहाज के लिए? रसूल के गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलामी है रसूल में मौत भी कबूल है, जहां इश्क़ मुस्तफा जिंदगी वसूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बिल्कुल सही। मुर्दाबाद फलस्तीन, मुर्दाबाद फलस्तीन, मुर्दाबाद फलस्तीन, मुर्दाबाद फलस्तीन, मुर्दाबाद इसराइल मुर्दाबाद, फलस्तीन जो है वो जिंदाबाद, और उसके मसले के हल के लिए ये जी लाहौरियों के जज्बात हैं यहाँ पर सारे के सारे जो। और आप भी फलस्तीन को आज ये पैगाम दे रहे, एक नारा लगा के मोहब्बत से हम आपका इसके साथ नारे का जवाब देंगे। जी बिल्कुल जी, यहाँ पे हमारा हम सब का क्या ताल्लुक क्या है फलस्तीन से? ला इलाहा इल्लल्लाह का ये पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारा क्या नारा क्या है? फलस्तीन से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। फलस्तीन से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। फलस्तीन से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो नाज़रीन ये आज का यहाँ पर जो लाहौरियों के जज्बात आपको दिखा रहे हैं मसला फलस्तीन के हवाले से, उसके हल के हवाले से बड़ी तादाद में यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि एक टेबल पर बैठकर और इंशाल्लाह ताला इस मसले का हल निकाले। पूरी कौम की तवज्जो हुकूमत पाकिस्तान है। बिल्कुल जी नाज़रीन, इस वक्त जो है मसला फलस्तीन के हल के लिए तमाम लाहौरिये जो हैं वो मुत्तहिद हैं, मुत्तफिक हैं और एक आवाज़ दे रहे हैं, एक हल। क्या हल क्या है जी यहाँ पर आपकी नज़र में? हल सिर्फ जिहाद में है। अच्छा। अगर मुसलमान आज ऐलान कर दे कि हम इसके खिलाफ हैं, पूरी ईसाई और यहूदियों के खिलाफ, तो अभी ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अभी ठीक हो जाएगा, 1 मिनट नहीं लगेगा। सारी इस्लामी दुनिया मुत्तहिद हो जाए। मुत्तहिद हो जाए। दुश्मन उसी वक्त ताकतवर होता है जब हम कमजोरी दिखाते हैं। अगर हम आज ऐलान कर दे जिहाद का तो वो टिक ही नहीं सकते। सही, बिल्कुल जी, हम सब यहाँ पर मुत्तहिद हो जाए, यहाँ पर मुत्तहिद हो जाए तो जो है यहाँ पर टिक ही नहीं सकते जो कुफार हैं, जो यहूदी हैं। क्या हल क्या है जी? जी इसका वाहद हल सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो है सिर्फ जहाद। बस आज अगर इस्लाम मुसलमान ये हमारे हुक्मरान आज जहाद का ऐलान कर दे, अगर नहीं भी करें उनको एक टाइम फ्रेम दें तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर भी आज़ाद है, फ़लस्तीन भी, बर्मा भी, सब मुस्लिम ममालिक जितने भी है जिनके ऊपर जुल्म सितम हो रहा है वो आज़ाद हो जाएंगे। बिल्कुल जी, यहाँ पर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पर यूपी चाहिए, सलाहुद्दीन यूपी, बस सलाहुद्दीन कोई नहीं, सलाहुद्दीन यूपी होगा तो ये काम होगा। सलाहुद्दीन यूबी होगा तो ये काम हो जाएगा। बिल्कुल सही। नाज़रीन यहाँ पर बड़ी तादाद में जो लाहौरिये मौजूद हैं उनकी हमने आप तक आवाज़ पहुँचाई। लाहौरिये मसला फ़लस्तीन का हल चाहते हैं, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी चाहते हैं, वो यहाँ पर जितने मुसलमान ममालिक हैं उनका इत्तेहाद चाहते हैं और वो जानते हैं कि अगर हम मुत्तहिद होंगे तो इसके ज़रिए कामयाबी मिल सकती है। आज का प्रोग्राम लाहौरियों के साथ था, लाहौरियों के जज्बात आप तक पहुँचाए। यहाँ से अपने मेज़बान नजम अली खान को और न्यूज़ नाइट की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी नए इशू के साथ और नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।